سیدنا حسین اپنی بات پر قائم رہے کہ میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتا ہوں. یہ سیدنا حسین کا موقف تھا. جب یہ خود سردار ہیں، لوگوں نے ان کی بیعت کرنی ہے تو لوگ ان کی بیعت کریں گے، یہ کسی کی کیوں بیعت کریں گے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت پر آمادگی کر دی تھی پہلے دن ہی، اور آخری دن تک سیدنا حسین اپنی بات پر قائم رہے کہ میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتا ہوں. یہ سیدنا حسین کا موقف تھا. تو ہم نے اپنی ویڈیوز میں بار بار لگاتار مولویوں کے جھوٹ آپ کے سامنے رکھے، اور آج بھی ایک بہت بڑا جھوٹ آپ نے دیکھا کہ یہ مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں مولوی کہتا ہے کہ وہ یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے. آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پروفائل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جنت کے سردار ہیں. امام حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں. ابھی اس بات سے اندازہ لگایا جائے کہ دنیا سے بہتر ہے جنت، دنیا سے بہتر ہے جنت، اور اس دنیا کے نہیں آخرت میں جو جنت ملے گی اس کے سردار ہیں مولا حسین علیہ السلام. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور مولوی کی یہ حسرت ہے کہ مولا حسین جو جنت کے سردار ہیں وہ یزید کی بیعت کر لیں کسی نہ کسی طریقے سے. یزید جو کہ دوزخ کا سردار ہے اور میرے مولا حسین جنت کے سردار ہیں. مولوی حرام اور حلال کو مکس کرنا چاہتا ہے. مولوی کی یہ حسرت ہے کہ جو اہل بیت ہیں، آپ اس الفاظ پہ غور کریں. اہل بیت، اہل بیت وہ ہے کہ وہی اہل ہے کہ ان کی بیعت کی جائے، یعنی کہ اہل بیت کا وہ گھرانہ ہے، یہ بیت کے اہل ہے، یہی ہے بیت کے اہل. جب یہ خود سردار ہیں، لوگوں نے ان کی بیعت کرنی ہے تو لوگ ان کی بیعت کریں گے، یہ کسی کی کیوں بیعت کریں گے؟ آلریڈی امام حسین جنت کے سردار ہیں. یزید کو چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرے. اور شروع میں اس نے کیا کہا آپ کو سناتے ہیں، یہ الفاظ پہ غور کیجئے گا، یہاں سے بغض آپ کو بتائیں گے مولوی کا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا، مولوی نے کہا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کو، اور امام حسین علیہ السلام ان کی جو بخاری ہے، صحیح مسلم، صحیح ستہ، ان کی کتابوں میں جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر علیہ السلام لکھا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے. کیونکہ اس معیار کو نیچے لانے کے لیے، صحابہ اور اہل بیت کو مکس کرنے کے لیے، کہ جیسے ہمارے صحابہ ہیں غلطی کر سکتے ہیں تو اہل بیت بھی ایسے ہی ہیں، تو اہل علیہ السلام نہیں کہتے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. اللہ ان سے راضی ہے تو جنت کے سردار بنا دیا نا مولوی صاحب. اللہ تو ان سے راضی ہے، اللہ یزید سے راضی نہیں ہے، اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہے جو اہل بیت کے دشمن ہیں، اور اللہ مولوی تم سے بھی راضی نہیں ہے کیونکہ تم اس سردار کی بیعت اس خبیث پلیت یزید سے کروانا چاہتے ہو. وہ مولا حسین علیہ السلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر سوار ہوتے تھے، وہ مولا حسین جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو امام حسین رسول کی پشت پر بیٹھ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سجدے کو لمبا کر دیتے تھے. اور اس حسین کی جو بیعت ہے وہ یزید سے کروا رہے ہو. مولوی اپنے ایمان سے بتاؤ، اپنے خلوص نیت سے بتاؤ، سچ بتاؤ. اگر تم اللہ اور رسول کو مانتے ہو، یہ بات کون سی کتاب میں کہاں پر لکھی ہے؟ اتنی بڑی بات مولوی تم کر رہے ہو، اس کی کوئی دلیل تو دو، کسی کتاب کا حوالہ تو دو کہ شیعہ کی کتب میں لکھا ہے، تمہاری اپنی سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہے. کہیں پر یہ بات نہیں لکھی. کیونکہ مولوی کا دل کرتا تو مولوی نے یہ بات بول دی، کیونکہ مولوی کی اہل بیت علیہ السلام سے، جنت کے سرداروں سے
बुग़्ज़ है, दुश्मनी चल रही है इसीलिए। अच्छा खैर, हमने मौलवी को जो है ना इस बात का तो जवाब दे दिया। आगे मौलवी साहब क्या कह रहे हैं ये भी सुनते हैं। जिन लोगों ने कुरान को नहीं बख्शा, आप उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो आपको तारीख सही बताएंगे? कुरान में तहरीफ कर दी, कुरानी आयात में तहरीफ कर दी, कुरान को मुहर्रफ मानते हैं। जिनका अकीदा है कि ये कुरान ये वो नहीं है, जिन्होंने हदीसें गढ़ी और थोक के हिसाब से गढ़ी, आप उनसे तवक्को रखते हैं कि वो आपको तारीख सही बताएंगे? ई ख़ियालस्त महालस्त वजनू। मौलवी कह रहा है कि शिया जो है इनसे अब तारीख पूछते हैं, इन्होंने तो कुरान को जो है ना सही मानने से इनकार कर दिया। शिया कहते हैं कि कुरान सही नहीं है। तो मौलवी साहब ज़रा शर्म करते, ज़रा तहकीकात करते, अपनी किताबें पढ़ते। अभी हम आपको अहले सुन्नत के कुतब दिखाना चाहते हैं। अल्लाह यारी साहब आपको दिखाएंगे, आपका ऑपरेशन करेंगे, आपका दिमाग सेट करेंगे कि ये सारी बातें जो शियों के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हो ना कि शियों का ईमान नहीं है, कि कुरान मुकम्मल नहीं है, ये शिया का ईमान है, बल्कि ये सारी बातें आपकी किताबों में लिखी हैं और आपके सहाबा का ईमान है कि कुरान मुकम्मल नहीं है, ये शियों का ईमान नहीं है। और सारी किताबें आपकी, बड़े गौर से वीडियो देखिएगा, जितने भी हमारे अहले सुन्नत के भाई हैं, और ये मौलवी तक भी अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो मौलवी भी बड़े गौर से देखे ये दलाइल। बिस्मिल्लाह। असली कुरान इसको दिखा देते। सुननो इब्न माजा, चाप दारुल फिक्र, किताब छपी है सन 1424-2003 में। ये किताब है बाब रिकाल कबीर, किताब निकाह में, हदीस नंबर 1944। हाँ मौलवी साहब, आपकी मालूमात, आपने जो दर्स निज़ामी पढ़ी है ना, अब मजीद हम आपको कुछ निज़ामी पढ़ाते हैं। निज़ामी सीखो। अब्दुर्रहमान इब्न कासिम इब्न मोहम्मद से, और वो आयशा से रवायत करते हैं, क़ालत, आयशा ने फरमाया, लक़द नज़लत आयतुर रजम, आय रजम नाजिल हुई है, वरज़ाअतुल कबीर अशरन, कबीर को, बड़े आदमी को 10 दफ़ा छाती दे दो वो महरम बन जाता है। वलक़द कान फ़ी सहीफ़तिन तहत सरीरी, वो ये सब कुरान मैंने कागज़ में लिखा था, किताब में लिखा था, वो मेरे बिस्तर के नीचे। हालत देखो, कोई भी आप लोग पिंडी में यही रस्म है आपके पास, कुरान को चारपाई के नीचे रखते हो। फलम्मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई चारपाई के नीचे रखे उस पर सो जाए, वो मुसलमान है काफिर है? बताओ, मतलब यही, अगर कोई कुरान को बिस्तर के नीचे रखे उस पर सोता रहे, और भाई कुरान को बिस्तर के नीचे रखते हैं या तो ऊपर, कुरान के एहतराम है उस पर सोते हैं। मौलवी साहब फंस गया है, फतवा नहीं देगा, फतवा नहीं देगा, फतवा में दे दो, फतवा ना दो, लोगों को पता चल गया, आपके पास जवाब नहीं है। फलम्मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशगलना बिमौतिही दखल दाजिन फअकलहा, अब वो गायब हो गया। मैं आपको बताता हूँ कहाँ गायब हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है, बकरी आके खा गई है। वो कुरान, बहुत सारा कुरान ज़ाया हो गया, वो कहा गया, बकरी खा गई है। हाँ जी हारिस भाई, बकरी कैसे खाया? बकरी को खा लिया वो? नहीं, आयशा की हदीस दिखा रहा हूँ, मजाक क्यों कर रहा हूँ, मैं हदीस दिखा दी आपको। बिस्तर के नीचे कुरान रख के कुरान पे सो जाना मुसलमान है? ये मुसलमान का किरदार है? मिनू 10 मौलवी, मिनू 10 इस सवाल का जवाब। हाँ दूसरी बात, कुरान आप कह रहे हैं कि कुरान कहाँ गया, कहाँ गया? जवाब यह, बकरी खा गई। आपकी अम्मा ने जवाब दे दी, बकरी खा गई। आप कहते हैं कि ये कुरान सही है आपके नजदीक, कामिल है, वो दिखाओ, वो हदीस दिखाओ। आयशा तो कह रहे बकरी खा गई ये पूरी कुरान को। अब्दुल्लाह इब्न उमर कह रहे कुछ कुरान बच गया। अब मैं उमर का भी कौल आपको दिखा देता हूँ, उमर साहब का भी कौल दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आगे दलाइल देखने से पहले, आज तक ये मौलवी लोग जो है ना शियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि शियों का कुरान बकरी खा गई है, शियों का कुरान बकरी खा गई है, ये मौलवी शियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। और आज ये पता चला है कि ये जो है ना बात इन्हीं के घर से है, इन्हीं की किताबों में लिखी हुई है और इन्हीं के लिए लिखी हुई है। शियों के ऊपर इल्ज़ाम झूठा लगाते हैं, शुरू से झूठ बोलना जो है इबादत समझते हैं भाई। अफसोस है मौलवी, अफसोस है, स्टडी करते नहीं हो, किताबें पढ़ते नहीं हो और मुकाबला करते हो शियाने हैदर करार से। खैर आगे दलाइल बड़े गौर से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कुरान के बारे में कि भाई शिया जो है ये कुरान को सही नहीं मानते। ये शिया तो सही मानते, आपके जो है ना लोग सही नहीं मानते, और उन्होंने किताबों में ये बातें लिख दी हैं और बड़े गौर से देखते हैं। वक्को सही बुखारी, बुखारी आके नहीं, यशियों की किताबें आपकी किताबें। अब बताओ हारिस किसकी है? हमारी है, हमारी है बुखारी। मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी, सही है। चाप दार इह्या तुराथ अल अरबी, किताब छपी है सन 2001 में, दार इह्या तुराथ अल अरबी, सही, ठीक है ना भाई। ये सफ़ा नंबर है 1267।
1267 सही है। किताब कौन सा है? किताबुल अहकाम। बाबु शहादती तकूनु इंद अल हाकिम फी विलायतिही अल क़दा औ क़ब्ल ज़ालिका लिल ख़स्म। ठीक है ना? ये हदीस नंबर 7169 है। उसके बाद ये बाब है, उसके बाद रिवायत है हदीस की, उमर की रिवायत है। लौ क़ाल उमर लौला अन यक़ूल अन्नासु ज़ादा उमर फी किताबिल्लाह लकतबतु आयत अर्रज्म बियदी। आया रज्म मुझे दिखाओ कुरान में, आया रज्म मुझे दिखाओ। लौला अन यक़ूल, अगर लोग ये ना कहें कि उमर ने कुरान में इजाफा किया है, मैं आया रज्म अपने हाथ से लिख देता, कुरान में मैं लिख देता। ये उमर की शहादत, आयशा की शहादत, अब्दुल्लाह इब्न उमर की शहादत, कुरान नाक़िस है, कुरान को बकरी कहा गई। आपके पास सहाबा के सही तरीन अक़वाल हैं कि कुरान नाक़िस है, कुरान को बकरी कहा गई है, बाकी कुरानों का उस्मान ने जला दिया। या आपके पास सही अहादीस है, आपके कुतुब में भरी पड़ी, इनके पास अहादीस भरी पड़ी है, हदीस एक भी नहीं है, कुरान की आयत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुरान कामिल है, बस इनका रट्टा है कुरान कामिल, कुरान कामिल, कुरान कामिल। आपके कुरान तो बकरी कहा गई है, वो इमाम, आपके कुरान जो इमाम महदी के पास भी नहीं है ना, वो तो बकरी कहा गई है। वो तो अल्लाह अपने कुरान की हिफाजत कर सके ना, अल्लाह ताला ने अपनी वही की हिफाजत दे कर, एक बकरी ने अल्लाह को शिकस्त दी। आपको तो यही दीन है ना। तो जी ये वीडियोस आपने देखी, और इस वीडियो में जितनी भी बातें हैं वो अहले सुन्नत की कुतुब से जो है ना पेश की गई हैं, कोई शियों की किताब नहीं है। और आज की वीडियो में ये भी हमें पता चल चुका है कि कुरान कामिल किसके पास है और नाकिस कुरान जो है वो कौन समझते हैं, वो किसका अकीदा है। अहले सुन्नत वाले लोग उनकी किताबों में उनके जो सहाबा है वही बता रहे हैं कि कुरान जो है वो अनकम्प्लीट है। तो अभी अहले सुन्नत इन बातों को जो है ना बताने की बजाय अवाम को, शियों को जो है ना दबा रही है, और शियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई शिया का कुरान बकरी खा गई। ये बकरी वाली जो बातें हैं ये बुखारी शरीफ और सुनन माजा आप अलैहि साहब ने आपको दिखाई। तो अभी आप देखें कि दीन का हाल जो है इन मौलवियों ने क्या किया हुआ है। किताबें बुखारी शरीफ देखें आप ज़रा गौर व फिक्र से। तो ये वीडियो आपने देखी, और इस वीडियोस में हमने मौलवियों के झूठ आपके सामने रखे कि मौलवी कितने झूठे हैं। इनको कम से कम अपनी किताबें देखनी चाहिए और उनको समझना चाहिए, और अच्छे तरीके से दीन की स्टडी करनी चाहिए, और जो है ना फिर शियों से बात करनी चाहिए। ये दुनिया में जो है ना लड़ाई फसाद करवाने में मौलवी बड़े खुश होते हैं, लेकिन स्टडी नहीं करते, अपनी किताबें नहीं देखते, बस ये कहते हैं कि शिया बुरे हैं। ये नहीं सोचते कि हम शियों को बुरा कहते हैं, कभी अपनी किताबें भी तो देखें। तो बहरहाल जी ये आपने वीडियो देखी, बहुत शुक्रिया। और एंड स्क्रीन में हमारी प्लेलिस्ट है, वो भी लाजमी देखिएगा। और आखिर में दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, सलाम या कायम आले मोहम्मद, सलाम या इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम।